نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا اور اپنے محبوب سیاح لا مکان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ وہ سعادت ہے جس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس معلوماتی ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد یعنی ایمان کی پختگی اور درست شرعی مسائل پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہماری اس گفتگو کی بنیاد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا مستند ترجمہ قرآن کنز الایمان اور مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف بہار شریعت پر ہوگی۔ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر ہے، لیکن ان سب کی بنیاد ایمان ہے۔ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو کوئی بھی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں۔ کنز الایمان کی روشنی میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ کنز الایمان میں یوں ہے: اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی بندگی کرو۔ پارہ 17 سورہ انبیاء۔ صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے پیاروں کی تعظیم کرنا ہی اصل دین ہے۔ علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایمان کی مٹھاس تب ملتی ہے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات سے زیادہ عزیز رکھے۔ بلغ جراح۔ عبادت کے لیے جسم اور روح دونوں کی پاکیزگی ضروری ہے۔ اکثر لوگ وضو تو کرتے ہیں لیکن نادانستہ طور پر ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس سے وضو نہیں ہوتا اور نتیجتاً نماز بھی نہیں ہوتی۔ بہار شریعت کے حوالے سے بہار شریعت حصہ دوم صفحہ 284 پر درج ہے کہ وضو میں 4 فرائض ہیں: پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ یہاں ایک اہم مسئلہ یاد رکھیے جو بہار شریعت میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اگر ناخن کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہ ہوگا اور نماز نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہاں تک تو ہم نے طہارت اور عقیدے کی بات کی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ایسا خفیہ دشمن ہے جو ہماری زندگی بھر کی عبادتوں کو پل بھر میں غارت کر سکتا ہے؟ ایک ایسی نادانی جو بظاہر بہت چھوٹی لگتی ہے لیکن اس کی وجہ سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ وہ کون سی ایسی حرکت ہے جو ہم روزانہ کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں مگر حقیقت میں وہ ہمیں ہلاکت کی طرف لے جا رہی ہے؟ وہ ہولناک حقیقت اور اس سے بچنے کا طریقہ ہم اسی حصے کے بقیہ وقت میں جانیں گے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ کیونکہ اگلے چند منٹ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ دشمن تکبر اور گستاخی ہے۔ صحابہ کرام اور اولیاء اعظام ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے۔ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا کنز الایمان میں: اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اقارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معمولی سی بے ادبی تمام زندگی کی نمازوں اور روزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح بہار شریعت میں نماز کے ابواب میں لکھا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے وہ سخت گنہگار اور عذاب نار کا مستحق ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے اور یہی وہ نور ہے جو قبر کی اندھیری رات میں کام آئے گا۔ نریٹر: آج کے اس پہلے حصے میں ہم نے ایمان، طہارت اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کو سمجھا۔ یاد رکھیے کہ دین صرف معلومات کا نام نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کنز الایمان اور بہار شریعت جیسی کتب سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ محترم ناظرین، زندگی کے اس دوسرے حصے میں ہم ایک ایسے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں جو ہماری دنیاوی زندگی سے لے کر قبر اور حشر تک کے معاملات کا احاطہ کرے گا۔ پہلے حصے میں ہم نے ایمان اور طہارت کی اہمیت کو جانا، اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایک سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معاشرتی معاملات اور حقوق العباد کو کس طرح ادا کرتا ہے۔ قرآن کریم کا فیضان ہدایت جو ہمیں امام اہل سنت کے ترجمہ کنز الایمان کی صورت میں ملا ہے، وہ ہمیں قدم قدم پر یہ بتاتا ہے کہ صرف دعوی ایمان کافی نہیں بلکہ عمل کی پختگی بھی لازم ہے۔
सूरह माइदा में इरशाद बारी ताला है, जिसका तर्जुमा कंजुल ईमान में यूं है, ए ईमान वालो, अल्लाह के शायर की बेहुरमती न करो। ये एक बहुत गहरी बात है। शायर इस्लाम की ताज़ीम दरअसल तक़वा की बुनियाद है, और इसी ताज़ीम के दायरे में हमारे वालिदैन, असातिज़ा और बुज़ुर्गों का एहतराम भी आता है। जब हम मामलात ज़िंदगी की बात करते हैं तो फ़िक़्ह हनफ़ी का शाहकार बहार शरीयत हमारी बेहतरीन रहनुमाई करती है। इस अजीम किताब में सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि अलैह ने हुकूकुल इबाद पर जो रोशनी डाली है वो हमें झंझोड़ कर रख देती है। बहार शरीयत में वाज़े तौर पर लिखा है कि किसी मुसलमान की नाहक दिलाजारी करना काबा ढहाने से भी बड़ा गुनाह है। आज हम अपनी ज़ुबानों से लोगों के दिल छलनी कर देते हैं और समझते हैं कि शायद हम बहुत बड़े दीनदार हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि क़यामत के दिन जहां नमाज और रोज़े पूछे जाएंगे, वहां ये भी पूछा जाएगा कि तुम्हारी ज़बान और हाथ से तुम्हारे भाई महफूज थे या नहीं। रिज़्क़ हलाल के बारे में बहार शरीयत हमें सिखाती है कि जो शख्स अपने अहलो आयाल के लिए हलाल रोज़ी कमाने की तगोदो करता है, वो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले के मानिंद है। हराम का एक लुक़मा इंसान की 40 दिन की इबादत को ज़ाया कर देता है। अब यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक शख्स मस्जिद की पहली सफ़ में नमाज पढ़ रहा है, बज़ाहिर बहुत बड़ा आबिद है, लेकिन इसकी एक छिपी हुई आदत इसे जहन्नुम के उस गड्ढे में गिरा रही है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। वो क्या अमल है? वो है हक़ मारना, चाहे वो बहनों का विरासत में हक़ हो या किसी मजदूर की मजदूरी। इस तवील गौर व फिक्र के बाद अब हम इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो नेक से नेक आदमी को भी कब्र में अजाब का शिकार कर सकती है। वो है चुगली और पेशाब की छींटों से न बचना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 कब्रों के पास से गुजरते हुए फरमाया था कि इन पर अजाब हो रहा है, और किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं, यानी वो बज़ाहिर इसे छोटा समझते थे, बल्कि इनमें से एक चुगली खाता था और दूसरा पेशाब की छींटों से एहतियात नहीं करता था। बहार शरीयत में तहारत के बाब में इन बारीक मसाइल को इतनी तफसील से बयान किया गया है कि अगर हम इनका मुताला करें तो हमें अपनी कोताहियों का एहसास होगा। इसी तरह कंजुल ईमान में सूरह हुजरात में ग़ीबत को अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने से तशबीह दी गई है। ये वो मामलात हैं जो हमारी नेकियों को ऐसे खा जाते हैं जैसे आग सूखी लकड़ी को। हमें अपने अखलाक को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के सांचे में ढालना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो हैं जिन्होंने अपने दुश्मनों को भी दुआएं दी और पत्थर खाकर भी प्यार बांटा। इस दूसरे हिस्से के इख्तिताम पर हमें याद करना होगा कि हम अपनी ज़बान को दुरूद पाक से तर रखेंगे और अपने मामलात में दयानतदारी इख्तियार करेंगे। सिर्फ तस्बीह घुमाना तसव्वुफ नहीं, बल्कि मखलूक खुदा की खिदमत और शरीयत की पाबंदी ही असल सूफिज़म और मसलक हक़ है। याद रखिए कि कब्र में पहला सवाल रब के बारे में, दूसरा दीन के बारे में और तीसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान के बारे में होगा। और वो पहचान तभी होगी जब हमारा दिल उनकी मोहब्बत और हमारी ज़िंदगी उनकी सुन्नत से मुनव्वर होगी। अल्लाह ताला हमें कंजुल ईमान की तिलावत और बहार शरीयत के मसाइल पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, ये थे असद जो आपको वीडियो के पहले हिस्सों के बारे में बता रहे थे। अब जानते हैं अब्बास से अगले हिस्सों के बारे में। कहीं मत जाइएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जी असद, शुक्रिया। मोहतरम नाजरीन, इस तवील और पुरअसर तीसरे हिस्सा में हम इल्म व मार्फत के उन समंदरों में गोताजन होने जा रहे हैं जो एक मुसलमान की रूह को जला बख्शते हैं। पिछली गुफ्तगू में हमने बुनियादी अकायद और तहारत के हवाले से जो बातें की वो तो महज एक आगाज था। अब हमें यह देखना है कि एक सच्चा सुन्नी सूफी जो मसलक के आला हजरत का पासबान है, वो अपनी जिंदगी की पेचीदा तरीन मामलात में शरीयत मुताहरा को किस तरह नाफिज करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में सिर्फ खाने पीने या आसाइशी जमा करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि हमारा हर लम्हा बंदगी इलाही का आईनादार होना चाहिए। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने कंजुल ईमान में जब कुरान मजीद का तर्जमा फरमाया तो उन्होंने सिर्फ अल्फाज नहीं लिखे, बल्कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू उसकी एक एक हर्फ में बसा दी। सूरह ज़ारियात की वो अजीम शान आयत जिसमें अल्लाह ने अपनी बंदगी का मकसद बयान किया, उसका मुताल्ला हमें ये सिखाता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी एक इबादत बन सकती है अगर हम इसे सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढाल लें। जब हम अपनी गर्दोपेश पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें नज़र आता है कि इंसान मामलात दुनिया में इतना मगन हो चुका है कि वो हलाल और हराम की तमीज़ भूलता जा रहा है। यहाँ हमारी रहनुमाई के लिए बहार शरीयत एक ऐसी मशले राह है जिसकी रोशनी क़यामत तक कम नहीं होगी। सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने बहार शरीयत के इस अजीम किताब में तिजारत, लेन देन, कर्ज और विवासत के वो बारीक मसाइल बयान फरमाए हैं जिनसे आम तौर पर लोग गाफिल रहते हैं।
बहार शरीयत के अब्वाब में ये सराहत मौजूद है कि जो ताजिर नाप तोल में कमी करता है या ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए गरीबों का इस्तेहसाल करता है, वो अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाता है। आज के इस मादी दौर में जहां सूद को बैंकिंग और मुख्तलिफ नामों से जीनत दी गई है, वहां कंजुल ईमान की आयात हमें झंझोड़ती हैं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग न करो। सूद का एक दिरहम 70 बार अपनी माँ के साथ ज़िना करने से ज़्यादा सख्त गुनाह है, और ये बात हमें तब समझ आती है जब हम मुस्तनद फ़िक़ही कुतुब का गहराई से मुताला करते हैं। अब इस गुफ्तगू का वो तवील तरीन और रूह फुरसा मोड़ आता है जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, लेकिन अब इसकी तफसील आपके ईमान को हिला कर रख देगी। एक शख्स जो बज़ाहिर मुत्तकी है, जिसके माथे पर सजदों का निशान है, जो शबे बेदार भी है, लेकिन इसके बावजूद वो जहन्नुम के उस गड़े की तरफ हाँका जा रहा है जहाँ सिर्फ हसरत और नदामत है। वो क्या चीज़ है? वो है बदअकीदगी का जहर। बहार शरीयत में अकायद के बयान में आला हज़रत के इरशादात की रोशनी में ये वाज़ेह किया गया है कि अगर कोई शख्स पूरी दुनिया की इबादतें लेकर आए, लेकिन उसके दिल में ज़र्रा बराबर भी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी या उनकी अज़मत में कमी का पहलू मौजूद हो, तो उसकी कोई नेकी कबूल नहीं। ये वो सस्पेंस है जो आज के नौजवान को समझने की ज़रूरत है कि महज ज़ाहिरी वसुक़ता और इबादत से धोखा न खाएं, बल्कि ये देखें कि जिसके पीछे आप चल रहे हैं उसका अक़ीदा क्या है। क्या उसका दिल मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज़ है? क्या वो औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन का अदब करने वाला है? अगर नहीं, तो उसकी सोहबत आपके ईमान के लिए वो काला नाग है जो आपको अबदी हलाकत में डाल देगा। इस तीसरे हिस्सा की तवालत में हमें इस बात को भी शामिल करते हैं कि एक सुन्नी मुसलमान का अपने मुआशरे में क्या किरदार होना चाहिए। सूफिया किराम ने हमेशा अल खल्क़ यालुल्लाह का दर्स दिया। बहार शरीयत हमें सिखाती है कि पड़ोसियों के हुकूक क्या हैं, यतीमों की परवरिश कैसे करनी है और बेवाओं की सरपरस्ती का सवाब क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी बेवा या मिस्कीन की हाजत रवाई के लिए दौड़ धूप करता है, वो ऐसा है जैसे अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, या जैसे वो दिन को रोज़ा रखने वाला और रात को क़याम करने वाला है। ये वो अमली तसव्वुफ़ है जो हमें अपने मसलक से मिलता है। हमें सिर्फ खानकाहों तक महदूद नहीं रहना, बल्कि शरीयत के इल्म को बाज़ारों, दफ्तरों और घरों तक लेकर जाना है। जब हम मौत की आगोश में जाने के लम्हात का तसव्वुर करते हैं, तो कंज़ुल ईमान की वो आयात हमारे सामने आती हैं जहां अल्लाह फरमाता है कि तुम जहां कहीं भी हो, मौत तुम्हें पालेगी, चाहे तुम मजबूत क़लों में क्यों ना हो। मौत के वक्त शैतान आखिरी वार करता है ताकि इंसान का ईमान छीन ले। उस वक्त वही शख्स साबित कदम रहता है जिसने ज़िंदगी में ज़िक्र इलाही और दरूद व सलाम को अपना ओढ़ना बिछौना बनाया हो। बहार शरीयत में नज़ा के वक्त के अहकामात और तलकीन के मसाइल इतने तफसीली हैं कि उन्हें पढ़कर इंसान की आंखें खुल जाती हैं। कब्र का वो पहला मरहला जहां मुनकर नकीर के सवालात होंगे, वहां कोई डिग्री या ओहदा काम नहीं आएगा। वहां सिर्फ वो पहचान काम आएगी जो हमने इस दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कायम की होगी। अगर हमने उनकी सुन्नतों को जिंदा किया होगा, अगर हमने उनके नाम लेवाओं से मोहब्बत की होगी, तो कब्र का वो अंधेरा बाग़ जन्नत की खिड़की बन जाएगा। आखिर में इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि ये तीसरा हिस्सा हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपता है। हमें अपने घरों में इल्मी माहौल पैदा करना है जहां अखबारात और रसाइल की जगह कंजुल ईमान और बहार शरीयत मौजूद हों, जहां बच्चों को कार्टून्स के बजाय सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हिकायात सहाबा सुनाई जाएं। याद रखिए कि नस्लों की आबियारी सही अकीदे और दुरुस्त फ़क़ही मालूमात से होती है। अगर हमने आज कोताही की तो कल क़यामत के दिन हमसे सवाल होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें इस तवील नशिस्त में सुनी गई बातों पर इखलास के साथ अमल करने की तौफीक दे और हमें मसलक हक़ पर कायम व दायम रखे, यहाँ तक कि जब हमारी रूह निकले तो ज़बान पर कलमा तैयबा और दिल में मदीने वाले की याद हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाजरीन, इस चौथे हिस्से की तवालत दरअसल उस दिन की तवालत की याद दहानी है जो 50,000 साल का एक दिन होगा। ये वो वक्त है जब कायनात का ज़र्रा ज़र्रा लरज़ रहा होगा और वक्त की गर्दिश थम जाएगी, जब सूर फूंका जाएगा और तमाम इंसानियत अपनी कब्रों से निकलेगी ऐसे जैसे बिखरे हुए परवाने होते हैं। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने कंजुल ईमान में सूरह मरियम की उस अजीमुल शान आयत का कितना रक़त अंगेज़ तर्जुमा फरमाया है कि जिस दिन हम परहेज़गारों को रहमान की तरफ मेहमान बनाकर ले जाएंगे और गुनहगारों को जहन्नुम की तरफ हाँकेंगे प्यासे। ज़रा इस मंज़र का तसव्वुर कीजिए। एक तरफ वो लोग होंगे जिनके चेहरे चौथवीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे और दूसरी तरफ वो जिनके चेहरे स्याह होंगे और वो अंधे, बहरे और गूंगे बनाकर उठाए जाएंगे।
मैदान हशर की हौलनाकी का जिक्र करते हुए बहार शरीयत के पहले हिस्से में सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस दिन ज़मीन बिल्कुल हमवार होगी, ना कोई पहाड़ होगा, ना कोई दरख्त जहाँ कोई किसी की पनाह ले सके। सूरज जो दुनिया में 9 करोड़ मील दूर है, उस दिन सिर्फ 1 मील या सवा नीज़े पर होगा। उसकी तपिश इतनी शदीद होगी कि खोपड़ियाँ पिघलने लगेंगी और इंसान अपने ही पसीने में गर्क होगा। किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक और किसी के मुंह तक, जो उसे लगाम की तरह जकड़ रहा होगा। शिद्दत प्यास से ज़बानें सूख कर कांटा बन जाएंगी और कलेजा मुंह को आएगा। लोग इस अजियत से इतने तंग होंगे कि वो पुकार उठेंगे कि ऐ अल्लाह, चाहे हमें जहन्नुम में डाल दे, लेकिन इस इंतज़ार और इस तकलीफ से निजात दे ले। इसी हौलनाकी के आलम में एक तवील इंतज़ार के बाद लोग मशवरा करेंगे कि कोई ऐसा अल्लाह का मुकर्रब बंदा हो जो हमारी सिफारिश करे ताकि हिसाब किताब का मरहला शुरू हो। लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाहों में जाएंगे। लेकिन अल्लाह की जलालत का वो आलम होगा कि हर नबी नफ्सी नफ्सी फरमाकर दूसरे की तरफ भेजेंगे। अब यहाँ वो बेमिसाल सस्पेंस और वो ईमान अफरोज हकीकत सामने आती है जो एक सच्चे सुन्नी का कुल सरमाया है। जब सारी कायनात बेबस होगी, जब जलीहुल कद्र अंबिया भी लरस रहे होंगे, उस वक्त काली कमली वाले मदीने के ताजदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होंगे और फरमाएंगे अना लहा, यानी इस सिफारिश के लिए मैं ही हूँ। आला हज़रत ने कंजुल ईमान में सूरह बनी इसराइल की आयत असा अय्यब असुका रब्बु का मकाम महमूदा का तर्जुमा फरमाया है कि करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें ऐसी जगह खड़ा करे जहाँ सब तुम्हारी हम्द करे। यही वो मकाम महमूद है जहाँ अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इख्तियार अता फरमाएगा कि पूरी कायनात के हिसाब का फ़ैसला आपकी मर्ज़ी से होगा। बहार शरीयत में अकायद के बाब में लिखा है कि शिफात की कई किस्में हैं। एक वो जो सबके लिए होगी ताकि हिसाब शुरू हो, शिफायत कुबरा। एक वो कि बिला हिसाब लोग जन्नत में जाएं, और एक वो कि जिनके लिए दोज़ख का हुक्म हो चुका हो वो बच जाएं। सुभान अल्लाह, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का वो आलम होगा कि आप फरमाएंगे कि ए अल्लाह, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। मोहतरम नाजरीन, इस तवील हिस्से में हमें यह भी समझना है कि उस दिन मीज़ान कायम होगा जहाँ नेकियां और गुनाह तौले जाएंगे। बहार शरीयत हमें बताती है कि मीज़ान हक है और उसकी 2 पलड़ियाँ हैं। जिसका नेकियों का पलड़ा भारी हो गया वो कामयाब हो गया, और जिसका हल्का रहा वो खसारे में रहा। वहाँ एक एक नेकी की तलाश होगी। कितना खुशनसीब होगा वो शख्स जिसके नामा आमाल में दरूद पाक की कसरत होगी। अहादीस मुबारका में आता है कि दरूद पाक मीज़ान में नेकियों के पलड़े को भारी कर देगा। फिर पुलिस रात का मरहला आएगा जो जहन्नुम की पीठ पर बिछा हुआ रास्ता है, जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ है। जहन्नुम नीचे तड़प रही होगी और ऊपर से गुजरना होगा। कुछ लोग बिजली की तरह गुजरेंगे, कुछ हवा की तरह, कुछ तेज़ घोड़े की तरह और कुछ गिरते पड़ते। मोमिन के लिए पुल से रात से गुजरते वक्त उसका ईमान और उसका इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशअले राह बनेगा। हशर देस मैदान में हौज़ कौसर का वो प्याला जो मुस्तफ़ा करीम के दस्ते मुबारक में होगा, वो सिर्फ उनको नसीब होगा जिन्होंने दुनिया में अपनी सुन्नत से बेवफाई नहीं की। बहार शरीयत में सराहत है कि बद मज़हबों और गुस्ताखों को फरिश्ते हौज़ कौसर से दूर हटा देंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि ये तो वो हैं जिन्होंने मेरे बाद दीन को बदल डाला था। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपने अकायद की हिफाजत करें, कंजुल ईमान और बहार शरीयत का दामन थामे रखें ताकि उस प्यास के दिन हम महरूम न रह जाएं। इस हिस्से के इख्तिताम पर मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ा है, लेकिन इसका बदला अबदी है। हशर की वो गर्मी और वो 50,000 साल का दिन आज ही की तैयारी मांगता है। क्या हमने अपने नामा आमाल में इतना दरूद सलाम जमा किया है कि हम हशर में हुजूर के झंडे के तले जगह पा सकें? क्या हमारे मामलात बहार शरीयत के मुताबिक हैं कि अल्लाह का कोई बंदा हमसे अपना हक ना मांगे? याद रखिए, उस दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा सिवाय उस हस्ती के जो हमारी निजात के लिए रोएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे और हमें क़यामत के दिन रुस्वाई से बचाकर अपने हबीब की शिफायत से माला माल फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, ये थे अब्बास। अब बारी है अली की वीडियो का बकिया हिस्सा जानते हैं। अली से परेशान नहीं होना और जुड़े रहना है हमारे साथ। जी अब्बास, शुक्रिया। मोहतरम नाजरीन, पिछले हिस्सों में हमने दुनिया की आजमाइश, मौत की सख्ती और हशर की हौलनाकियों का जिक्र किया, लेकिन अब इस 5वें हिस्सा में हम उस मुकाम का तस्करा करेंगे जिसके लिए मोमिन ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बानियां दी, जिसके लिए उसने रातों की नींदें हराम की और जिसके लिए उसने दुनिया की आर्जी लज्जतों को ठुकरा दिया। ये वो मुकाम है जिसे जन्नत कहा जाता है।
वो जगह जहां ना कोई गम होगा, ना कोई फिक्र, ना बुढ़ापा होगा और ना ही मौत। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने कंजुल ईमान में सूरह दहर यानी इंसान की आयत का क्या ही दिलकश तर्जुमा फरमाया है। और जब तू वहां देखे एक चैन और बड़ी सल्तनत, उनके बदन पर सब्ज बारीक रेशम और दबेज रेशम के कपड़े हैं और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए गए और उन्हें उनके रब ने सुथरी शराब पिलाई। जन्नत की हकीकत क्या है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि बहार शरीयत के पहले हिस्से में सदर शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें हैं जो ना किसी आंख ने देखें, ना किसी कान ने सुनी और ना ही किसी इंसान के दिल पर उनका गुमान गुजरा। जन्नत की जमीन जाफरान की है, उसकी मट्टी मुश्क है और उसकी इमारतें सोने और चांदी की ईंटों से बनी हैं जिनका गारा खालिस मुश्क है। वहाँ की नहरें दूध, शहद और शराब तहूर की हैं, लेकिन ये दुनिया की शराब जैसी नहीं कि जिससे अकल मारी जाए या बदबू आए, बल्कि ये वो पाकीज़ा मशरूब है जिसकी लज्जत अबदी है। कंजुल ईमान में अल्लाह फरमाता है कि जन्नत में उनके लिए वो सब कुछ है जो उनके जी चाहें और जिससे उनकी आंखें ठंडी हों। इस तवीन गुफ्तगू में जब हम जन्नत के महलात का जिक्र करते हैं तो रूह वजद में आ जाती है। बहार शरीयत के मुताबिक जन्नत में ऐसे महलात हैं जो याकूत और मोतियों के बने हुए हैं, जिनमें से पार नजर आता है। वहाँ के दरख्तों के तने सोने के हैं और उनके फल मक्खन से ज्यादा नरम और शहद से ज्यादा मीठे होंगे। जब कोई जन्नती किसी फल को तोड़ना चाहेगा तो वो खुद उसके करीब हो जाएगा। वहाँ कोई बीमारी नहीं होगी, कोई गंदगी नहीं होगी, यहाँ तक कि थूकने और नाक साफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जन्नतियों को जो पसीना आएगा वो मुश्क की तरह खुशबूदार होगा। सुबहान अल्लाह, ये है वो इनाम जो अल्लाह ने अपने फरमाबरदार बंदों के लिए तैयार कर रखा है। अब इस 5वें हिस्सा में वो सस्पेंस और वो लम्हा आता है जो हर जन्नती की सबसे बड़ी आरजू होगी। क्या आप जानते हैं कि जन्नत की तमाम नेमतें, हूर और कसूर, लजीज खाने, रेशमी लिबास एक तरफ और वो एक घड़ी एक तरफ जब कायनात का मालिक अपने बंदों से हिजाब उठा देगा। जी हाँ, वो है दीदारे इलाही। बहार शरीयत में अकायद के बाब में सराहत के साथ दर्ज है कि जन्नतियों को अल्लाह ताला का दीदार होगा और वो दीदार बिला कैफ यानी बगैर किसी कैफियत या सिंध के होगा। ये वो लज्जत होगी जिसके सामने जन्नत की तमाम नेमतें हीच मालूम होंगी। जब अल्लाह फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदो क्या तुम राजी हो, तो बंदे अर्ज करेंगे कि ऐ रब, तूने हमें वो कुछ दिया जो किसी को नहीं दिया, अब हम और क्या मांगें। तब अल्लाह अपना नूरे जमाल जाहिर फरमाएगा और जन्नती उसके दीदार में ऐसे खो जाएंगे कि उन्हें किसी और चीज का होश नहीं रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाजरीन, इस हिस्से में हम उस मुकाम का तस्करा करेंगे जिसका जिक्र कुरान करीम और अहादीस मुबारका में कसरत से डराने के लिए किया गया है ताकि इंसान गुनाहों की दलदल से निकलकर रब की पनाह में आ जाए। ये वो मुकाम है जिसे जहन्नुम कहा जाता है, जो अल्लाह के जलाल और उसके गज़ब की जगह है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने कंजुल ईमान में सूरह तहरीम की इस आयत का कितना लर्ज़ाख़ीज़ तर्जुमा फरमाया है। ऐ ईमान वालों, अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसके ईंधन आदमी और पत्थर हैं, जिस पर सख्त मिजाज ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाए। जहन्नुम की आग की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि दुनिया की आग इसका 70वां हिस्सा है। बहार शरीयत के पहले हिस्से में सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि जहन्नुम की आग को 1000 साल तक दहकाया गया, यहाँ तक कि वो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल तक दहकाया गया, यहाँ तक कि वो सफ़ेद हो गई, फिर 1000 साल तक दहकाया गया, यहाँ तक कि वो सियाह हो गई। अब वो बिल्कुल सियाह है जिसमें रोशनी का नामो निशान नहीं है। वहाँ के सांप ऊँटों की गर्दनों जैसे लंबे और बिच्छू खच्चरों जितने बड़े हैं, जिनके एक बार डसने का असर बरसों तक रहेगा। इस तवील गुफ्तगू में जब हम जहन्नुम की खुराक का जिक्र करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कंजुल ईमान में अल्लाह फरमाता है कि जहन्नुमियों को ज़क़ूम यानी थूअर का दरख्त खिलाया जाएगा जो पिघले हुए तांबे की तरह पेट में जोश मारेगा, और पीने के लिए हमीम यानी खोलता हुआ पानी दिया जाएगा जो आंतों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। बहार शरीयत में सराहत है कि जहन्नमियों को पीप और लहू पिलाया जाएगा, और जब वो इसे पीना चाहेंगे तो इसकी हिद्दत से उनके चेहरे की खाल उतरकर प्याले में गिर जाएगी। ये है वो हौलनाक इंजाम उन लोगों का जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी की और हुकूकुल इबाद पामार किए।
अब इस अगले हिस्से में वो सस्पेंस और वो सवाल आता है जिसका जवाब हर मुसलमान को जानना चाहिए। वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जिन्हें आज हम बहुत मामूली समझते हैं, लेकिन वो जहन्नुम के सबसे निचले और बदतरीन तबके में ले जाने वाले हैं। जी हाँ, वो है निफाक और बदअकीदगी। बारे शरीयत में अकायद के बाब में लिखा है कि मुनाफिकीन जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। इसी तरह जो लोग अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं या उनकी अजमत के मुनकिर हैं, उनके लिए अबदी अजाब है। आला हजरत ने उम्र भर इसीलिए ताकीद फरमाई कि अपने अकीदे को बचाओ, क्योंकि अगर अकीदा बिगड़ गया तो सारी इबादतें जहन्नुम का ईंधन बन जाएंगी। जहन्नुम के 7 तबकात हैं और हर तबका पिछले से ज्यादा सख्त है। बाहर शरीयत के मुताबिक सबसे ऊपर का तबका गुनाहगार मुसलमानों के लिए है, जिन्हें अल्लाह चाहेगा तो अपने फजल या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। लेकिन कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए वहां हमेशगी का अजाब है। वहां मौत मांगने से भी नहीं आएगी। जहन्नुमी फरिश्ते मालिक को पुकारेंगे कि ए मालिक, तेरा रब हमारा किस्सा पाक कर दे, यानी हमें मौत दे दे। तो जवाब मिलेगा कि तुम्हें इसी में हमेशा रहना है। इस तवील स्क्रिप्ट में हमें यह भी समझना है कि जहन्नम से बचने के तरीके क्या हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आग से बचो, चाहे खजूर का एक टुकड़ा सदका करके ही सही। बार शरीयत हमें सिखाती है कि सच्ची तौबा गुनाहों को ऐसे मिटा देती है जैसे वो थे ही नहीं। कसरत से इस्तिग़फ़ार करना, नमाजों की पाबंदी करना और दरूद पाक पढ़ना वो अमाल हैं जो जहन्नम की आग को मोमिन पर हराम कर देते हैं। एक हदीस पाक का मफहूम है कि जिसकी आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू निकल आया, उसे जहन्नुम की आग नहीं छुएगी। इस अगले हिस्से के इख्तिताम पर मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि हम इस दुनिया की धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जहन्नुम का वो अबदी अजाब कैसे सहेंगे? अभी मोहलत बाकी है, अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है। आइए कंजुल ईमान की तिलावत को दिल का सुकून बनाएं और बाहर शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के गुनाहों की इस्लाह करें। हमें चाहिए कि हम हर नमाज के बाद अल्लाह से जहन्नुम से पनाह मांगें। या अल्लाह, हमें आग के अजाब से बचा। अल्लाह ताला हमें अपने गज़ब से बचाए, हमें नेक आमाल की तौफीक दे और हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिनका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसलुका ईमानन कामिलां व इश्क़न सादिक़न लिहबीबिकल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह, हमें सच्चा और पक्का आशिक़ रसूल बना, हमें कंजुल ईमान की तिलावत और बाहर शरीयत के मसाइल पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमें बदअक़ीदगी से बचा और ख़ातिमा बिल खैर नसीब फरमा। क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात और हौज़े कौसर नसीब फरमा। आमीन बिजाहिन नबीयिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।